کراچی میں لوڈ شیڈنگ کم نہ ہو سکی کہ الیکٹرک کا بجلی کا شارٹ فال 450 سے 500 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ 8 سے 15 گھنٹے تک جا پہنچی۔ متاثرہ علاقوں میں کلفٹن، ڈیفنس، اورنگی، لانڈی، ملیر، شاہ فیصل، قائد آباد، لیاقت مارکیٹ، سعود آباد اور مختلف علاقے شامل ہیں۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ 8 سے 15 گھنٹے تک جا پہنچی۔ شہر میں بجلی کی طلب 3250 میگا واٹ تک ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 450 سے 500 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے۔ کراچی میں اوسطاً جو بجلی کی سپلائی ہے وہ 2750 میگا واٹ تک جاری ہے، اور جو ہمیں اوسطاً ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے وہ تقریباً 3200 میگا واٹ یا 3250 میگا واٹ تک نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو شارٹ فال ہے وہ 400 سے 500 میگا واٹ کے درمیان اوسطاً ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کے الیکٹرک کو 1000 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ سے مل رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک اپنی پیداوار اور IPP سے مجموعی طور پر 1750 میگا واٹ بجلی سپلائی کر رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں PIB کالونی، جمشید روڈ، کورنگی، لانڈی، ملیر، شاہ فیصل، لیاقت آباد، اورنگی، لیاری کے ایریا شامل ہیں۔ کلفٹن کے مختلف بلاکس میں بھی 3 سے 6 گھنٹے اور ڈیفنس کے مختلف فیز میں 3 سے 6 گھنٹے تک بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سوئی سدن گیس نے کے الیکٹرک کو گیس سپلائی 100 ملین مکعب فٹ سے بھی کم کر دی ہے۔ واجبات کی ادائیگی نہ ہونے پر مزید گیس سپلائی کم کرنے کا عندیہ دیا ہوا ہے۔ ذرائع سوئی سدن گیس کا کہنا ہے کہ 10 ارب روپے واجبات کی ریکوری کا تاحال کے الیکٹرک نے پیمنٹ پلان نہیں دیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ شاہراہ فیصل سے ملحقہ اہم سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث عوام کو پریشانی کا سامنا ہے۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکل سواروں کو اذیت سے دوچار ہیں، مگر کوئی ادارہ مدد کو تیار نہیں۔ سڑک پر موجود یہ گڑھے کسی گاؤں دیہات کے نہیں، بلکہ شہر قائد کی سب سے بڑی اور مصروف شاہراہ فیصل سے ملحقہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ گزرنے والے گاڑی میں ہو یا موٹر سائیکل پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور تو اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کا بھی شکوہ ہے کہ سڑک جلد تعمیر کروائی جائے۔ بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے افسران نے بھی ان کو تاکید کی ہے کہ یہ بنائیں، لیکن ابھی تک یہ بنا نہیں ہے۔ کافی دنوں سے یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم انتظام میں ہوگا کہ جلدی اس کو ٹھیک کر لیں، اور کیا یہ تو نسلا ٹاور کی وجہ سے ہوئی ہے نا، اس کے ریپیئر کرانا گورنمنٹ کا کام ہے نا۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ پاکستان کا معاشی ہب ہونے کے باوجود شہر کا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ سر یہاں پہ تو پہلے تقریباً 1 فٹ پانی ہوتا ہے، یا آج پتہ نہیں کیسے بند ہوا ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، جب بھی آئیں یقین کرو اتنا پریشانی کا سامنا ہوا ہے جس کے کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کراچی کی تقریباً کافی جگہوں کا یہ حال ہے، لیکن سر بس اللہ پاک ہی رحم فرما سکتے ہیں۔ عوام نے شہری انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس سڑک کو جلد از جلد تعمیر کروایا جائے تاکہ پریشانیوں کا ازالہ ہو سکے۔ کیمرامین عمران احمد کے ہمراہ محمود ریاض، سٹی 21۔ کراچی سے پشاور جانے والا ایئر بلو کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ دوران پرواز اچانک موسم خراب ہوا اور طیارہ خراب موسم کی زد میں آ گیا۔ مسافروں کی چیخیں نکل گئیں۔ ایئر بلو کی پرواز 602 خراب موسم کی وجہ سے ناہموار ہو گئی۔ طیارے میں موجود مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور چیخو پکار میں طیارے کا کپتان حاضر دماغی اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو راؤنڈ کرتے ہوئے بلندی پر لے گیا۔ کپتان نے پشاور ایئرپورٹ کے قریب ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کر کے فوری لینڈنگ کی اجازت طلب کی اور طیارے کو بحفاظت پشاور ایئرپورٹ اتار لیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ واقعہ 9 جون کو پیش آیا تھا۔ سمر عباس، سٹی 21۔ شہر قائد میں منافع خور سرگرم ہو گئے۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی تیزی آ گئی۔ بینگن، سلاد پتہ، مرچوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو وہیں بیشتر سبزیاں بھی سستی نہ ہو سکیں۔ شہر قائد میں سبزیاں سستی نہ ہو سکی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ٹماٹر 100 روپے کلو تک دستیاب ہے تو وہیں پیاز تاحال 80 روپے کلو سے نیچے نہیں آ سکی ہے۔ ہرے مسالے میں بھی ہری مرچیں 200 روپے سے لے کے 250 روپے کلو تک دستیاب ہے۔ دھنیا پودینے کی فی گڈی 20 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے۔ سلاد پتہ 300 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے۔ بیگن 100 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ سرکاری قیمتوں پر آج تک عمل ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ 100 روپے میں اب صرف اتنی سبزی آتی ہے کہ بس ایک وقت کا گزارا ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اس وقت عجیب و غریب پوزیشن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے مہنگی ملتی ہیں اس لیے ہم مہنگی بیچتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو اس وقت اتنی مہنگائی ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کس طرح خرید کے اور کس طرح سے پکاتے ہوں گے، کس طرح کھاتے ہوں گے۔ غریب آدمی کے لیے تو مشکل ہو ہی گیا نا۔ پہلے 100 روپے میں اتنا آ جاتا تھا کہ 24 گھنٹے کا کھانا پک جاتا تھا، اب 100 میں اتنا نہیں آتا۔ سبزی منڈی اور علاقائی بازاروں میں سرگرم منافع خور شہریوں کی جیبوں کو دونوں ہاتھوں سے خالی کرنے میں سرگرم ہے اور ضلع انتظامیہ ان کے خلاف نمائشی کارروائیاں کرتی ہے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔
तारिक रोड लिबर्टी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन विंग ने महंगाई और वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन रहनुमाओं समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कारकुनान ने महंगाई और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई, बेकाबू होती लोड शेडिंग और बजट के खिलाफ तहरीक इंसाफ की खवातीन मैदान में आ गईं। तारिक रोड लिबर्टी चौक पर पीटीआई शोबे खवातीन की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने महंगाई, मौजूदा हुकूमत और बजट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दीगर मुजाहिरीन का कहना था कि इस महंगाई के सबब अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत से कहें लोड शेडिंग खत्म कर दें, हमारे इमरान खान को वापस लाएं। कि दुश्मन के इरादे को है ज़ेर अगर करना, दुश्मन के इरादे को है ज़ेर अगर करना, तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। और अमीन करार दिया है, हमें फ्री और फेयर इलेक्शन चाहिए और हमें ये महंगाई, ये इम्पोर्टेड हुकूमत कतई बजट ना मंजूर। मुजाहिरीन ने मुल्क में दोबारा शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत पर जोर देते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने नए माली साल बजट में पेट्रोलियम लेवी से 750 अरब रुपए वसूली का तखमीना दे दिया। टैक्स माहिरीन का कहना है कि 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी आयद होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हो सकता है। हुकूमत ने नए माली साल का वफाकी बजट में पेट्रोलियम लेवी से वसूली का हद मुकर्रर कर दिया। बजट दस्तावेज के मुताबिक बजट में पेट्रोलियम लेवी की मद में 750 अरब रुपए मुख्तस कर दिया गया। 1 जुलाई 2022 से पेट्रोलियम लेवी की वसूली शामिल की गई है। गुज़िश्ता माली साल फाइनेंस एक्ट के तहत पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 30 रुपए तक पेट्रोलियम लेवी वसूली की जा सकती है। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी से 650 अरब रुपए वसूली का तखमीना था। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी 650 अरब से कम करके 135 अरब रुपए कर दी गई थी। पीटीआई साबका हुकूमत ने जनवरी 2022 से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ते दामों फरोख्त करने के लिए पेट्रोलियम लेवी नहीं लगाई थी। हुकूमत ने आइंदा माली साल कुदरती गैस डेवलपमेंट सरचार्ज के जरिए 40 अरब रुपए वसूली का तखमीना लगाया है, जो पिछले बजट में 30 अरब रुपए रखी गई थी। बजट दस्तावेज के मुताबिक कुदरती गैस पर रॉयल्टी से 70 अरब रुपए वसूली का तखमीना लगाया गया है, जो रवा माली साल बजट में कुदरती गैस से रॉयल्टी की मद में 60 अरब रुपए वसूली का तखमीना था। अशरफ खान, सिटी 21। छोटे ताजिरों ने वफाकी बजट को अल्फाज और आदाद शुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। बोले हुकूमत से मायूसी हुई है। तफसीलात कराची से बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत के बजट पर ताजरों ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शमस बोले, माली साल 2022-23 के बजट में जो इकदामात किए गए वो वाज़े नहीं। उन्होंने फिक्स टैक्स माहाना के एदाद शुमार पर भी तनकीद की। किसी हद तक उन्होंने एक मुतालबा हमारा जो है वो माना है कि छोटे ताजरों को जो है वो फिक्स टैक्स की तरफ लाया जाए, जिसके लिए कल उन्होंने अंदिया दिया है कि 3000 से 10,000 का एक पैकेज वो बना रहे हैं, जिसमें छोटे ताजरों को रजिस्ट्रेशन की तरफ लाया जाएगा। लेकिन अब तक उसके दीगर मंदरजात जो है वो सामने नहीं लाए गए हैं कि वो कौन लोग होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा और किस हद तक उसको लाया जाएगा। छोटे ताजरों का कहना था कि बजट में पॉइंट ऑफ सेल को नहीं खत्म किया गया है। नए माली साल का बजट एदाद शुमार की हेर फेर के अलावा कुछ नहीं। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि नए माली साल का बजट खुशाइंद है। बजट सख्त आने की तवक्कुआत थी, लेकिन बजट इसके बरअक्स आया। सनतों के लिए गैस का नया टैरिफ देने और छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स का ऐलान खुशाइंद है और दरामदी बिल 75 अरब डॉलर से कम करके आइंदा माली साल 62 अरब डॉलर तक करने से भी मईशत को फ़ायदा होगा। आज हुकूमत ने बजट का ऐलान किया। मैं समझता हूँ बजट खुशाइंद है और जैसे कि हमें तवक्को थी कि ये इंतहाई सख्त बजट होगा, मगर उसके बरक्स इसमें हमने देखा कि इन्होंने इस्लाहात की तकरीबन हर शोबे में कोशिश की है। सनतों के लिए इन्होंने कहा कि हम आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को ठीक करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हम बेहतर करेंगे, बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, गैस और बिजली की जो प्राइसेस हैं वो कॉम्पिटिटिव रखी जाएंगी विद द रीजनल कंट्रीज़, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। और इसके अलावा जो हमारे रिफंड्स हैं और रिबेट्स हैं वो भी उन्होंने कहा कि इसी महीने उनकी अदायगी कर दी जाएगी। और इसके अलावा स्मॉल रिटेलर्स जो है उनका एक दरीना मुतालबा था कि उनसे फ़िक्स टैक्स लिया जाए और उन्हें ये नोटिस और हरासा करने का सिलसिला ना किया जाए, तो उस मुतालबे को भी उन्होंने मान लिया और फ़िक्स टैक्स कर दिया है। इसी तरीके से नौजवानों के लिए भी स्कीम का ऐलान किया है, कर्ज़ों का भी ऐलान किया है, IT की प्रमोशन का ऐलान किया है। तो अपनी जगह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इंपोर्ट कर्टेलमेंट का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने इस साल 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट के मुकाबले में कहा है कि जी हम 62 अरब डॉलर की इंपोर्ट करेंगे। कुछ एक्सपोर्ट टारगेट्स भी बढ़ा
बढ़ाने की बात की है, फॉरेन रेमिटेंस भी इंशाल्लाह इस साल बढ़ेगी। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अगर इस बजट के ऊपर अमल दरामद होता है तो ये एक अच्छा बजट होगा। जहाँ तक इसमें टैक्स मेजर्स का ताल्लुक है वो भी चूँकि पूरी तरह उनकी तफसील सामने नहीं आई तो इसलिए उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुल्तान से कराची आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में खातून से मुबैना ज़्यादती के मुकदमे में मुल्ज़िमान के रिमांड में तौसी कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुल्तान से कराची आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में खातून से मुबैना ज़्यादती का केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत के रूबरू इंकशाफ किया कि मुल्ज़िमान ने मुतासरा खातून के साथ गैंग रेप की वीडियो भी बनाई थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन और वीडियो बरामद करनी है, मुल्ज़िमान के यूनिफॉर्म भी बरामद करने हैं। अदालत ने गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी कर दी। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में मोहम्मद जाहिद, आकिब, मुनीर, ज़ुहैब, आमिर रज़ा और अब्दुल हफीज़ शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने 28 मई को मुल्तान से कराची वापस खातून से इज्तिमाई ज़्यादती की थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ सिटी रेलवे थाने में मुकदमा दर्ज है। मुतासरा खातून अदालत में 2 मुल्ज़िमान को शनाख्त भी कर चुकी है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का सोयम कल खुदादाद कॉलोनी में उनकी रहायशगाह के बाहर होगा। उनकी अचानक वफ़ात पर उनके मदा गमज़दा हैं। अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा कहते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन से दिल का रिश्ता था। रुकन कौमी असम्बली की पुलिस रात मौत पर पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल होने तक उनके घर को सील कर दिया है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद असल वारिस के हवाले किया जाएगा। नात ख्वानी, मुनफरिद लहजे और इल्म से लोगों के दिलों में घर करने वाले आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनका घर भी खाली हो गया। आमिर लियाकत की पुरसरार मौत के बाद पुलिस ने उनके घर को सील कर दिया है। अब ये घर कैसे खुलेगा, किसके हवाले किया जाएगा? सिटी 21 ने अहम तफसीलात हासिल कर ली। पुलिस तफ्तीश मुकम्मल होने और क्राइम सीन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही घर खोला और असल वारिस के हवाले किया जाएगा। नादरा डेटा के मुताबिक अब तक असल वारिसों में बेटा अहमद और बेटी दुआ सामने आई। नादरा रिकॉर्ड में पहली बीवी बुशरा और दूसरी बीवी तूबा का तलाकनामा मौजूद, मगर तीसरी बीवी दानिया का तलाकनामा रजिस्टर्ड नहीं है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तलाक फाइनल न होने पर दानिया भी वारिस का दावा कर सकती है। दूसरी जानिब आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर उनके चाहने वाले अफसुर्दा हैं। पर्दे के सामने तो उन्हें सभी जानते थे, वो पर्दे के पीछे कैसे थे? पड़ोसी ने आमिर लियाकत की जिंदगी की कहानी अपनी ज़बानी सुना दी। रमज़ान प्रोग्राम, रमज़ान की नशियात का तो मैं कहूँगा कुछ चीज़ों को तो वो समझो कि बानी है, तमाम एंकर जो है उसको बाद में कॉपी करते रहे। और आमिर की एक और अच्छी बात ये थी कि जो नीलाम घर के अंदर क्विज़ का लोगों को शौक़ होता था, आमिर ने अपने रमज़ान के प्रोग्राम में जो इस्लामी सवाल पूछना शुरू किए, उससे बच्चों को जो उस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते थे उनको भी मालूमात बढ़ाने का शौक़ हुआ। आमिर लियाकत हुसैन की अचानक वफात पर शोबे सितारे भी गमज़दा हैं। अदाकार व प्रोड्यूसर फ़हद मुस्तफ़ा ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि आमिर लियाकत हुसैन से दिल का रिश्ता था, जबकि अदाकारा इकरा अजीज़ और नबील कुरैशी ने भी इजहार अफसोस किया। यार बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है और बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने लेटली देखा भी है, हम सब भी देखते थे। मैं सच आपको बताऊं, मैं दिल में बड़ी मैं उनके लिए दुआएं करता था कि उनको अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से निकाले, कुछ बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। बट इट्स अ वेरी सैड एंड और आज हम यहाँ मिस कर रहे हैं उनको। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह यही बोलूँगी कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत थी। उन्होंने हमें हर लिहाज से अपनी बातों से उन्होंने हमें एक नया रास्ता दिखाया है हर दफ़ा। सो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। ये मौका नहीं है कि मैं इस तरह की जगह पे खड़े होकर जो है वो इस बारे में उस तरह से बात करूं, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली आज ही वो इवेंट हुआ है और आज ही ये चीज़ हो रही है। बिकॉज़ ऑब्वियसली बहुत ही 11th आवर था, वी कुडंट लाइक कैंसिल इट, बट अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें जो है वो बेहतर इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मरहूम आमिर लियाकत हुसैन का सोएम इतवार को बाद नमाज असर खुदादाद कॉलोनी में उनकी रिहाइशगाह के बाहर होगा। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल NA 245 में धांधली से मुतालिक आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ डॉक्टर फारूक सत्तार की दरख्वास्त खारिज कर दी। हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 245 में धांधली से मुतालिक आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ डॉक्टर फारूक सत्तार की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आमिर लियाकत हुसैन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके क्लाइंट इंतकाल कर गए हैं, अब इस दरख्वास्त की अहमियत नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ डॉक्टर फारूक सत्तार की दरख्वास्त खारिज कर दी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि आम इंतखाबात में आमिर लियाकत हुसैन को धांधली के जरिए कामयाब कराया गया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरंगी में ऑटिज़म मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने सिंध भर में ऑटिज़म का शिकार बच्चों के लिए 66 बहाली मरकज़ बनाने का ऐलान किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही कोशिशें मुकम्मल हो सकती हैं। ऑटिज़म का शिकार लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, हम नौकरियाँ देते रहेंगे। ये सफ़र शुरू किया था, आपने देखा 2018 में, तो हमने कहा कि जी जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको अपग्रेड किया जाए। DPD बनाया, उसका एक नया कानून बनाया गया, एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया गया। कानून असेंबली ने बनाया, अब डिपार्टमेंट के ऊपर था कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करें। और मुझे खुशी हुई है, सादिक मेमन साहब ने बताया है कि किस तरीके से 66 सेंटर्स पूरे सूबे में DPD देख रहा है और उनमें बेहतरी ला रहा है। हम वो सारे सहूलतें मुहैया करें इन सेंटर्स को। हमने कोरंगी के सेंटर का इफ्तिताह किया है ADHD एंड अडल्ट के लिए। इस प्लॉट पे जहाँ अभी हम ये तकरीब कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में यहाँ पे भी काम शुरू हो जाएगा। और मैंने सादिक साहब से कहा है कि इस साल मुझे ये कंप्लीट कराना है। हमें ख्याल है बहुत ज़्यादा हमें इस पे काम करना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम करेंगे और भी बनाए। आपने इंटर्नशिप्स की बात की, आई टेल यू आई विल गो टू एनी एक्सटेंट, द कैबिनेट विल गो टू एनी एक्सटेंट, वी विल एयर वेदर द कोर्ट्स टेक नोटिस ऑफ व्हाई वी आर गिविंग जॉब। इस काम के लिए हम सब कुछ करेंगे, बट लोग ऐसे चाहिए जो कि पैशन के साथ इधर काम कर सकें। सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी ने तरदीद करते हुए कहा है कि MKM ने सिंध हुकूमत से वजारतें नहीं मांगी, उनका मसला डोमिसाइल, मरदमशुमारी और शहरी मसाइल हैं। उन्होंने कराची में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेहतर होने का दावा करते हुए कहा कि अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो मेयर ज़रूर हमारा बनेगा। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने शहर कायद में अपनी जमात पीपल्स पार्टी की मेहनत और कारकर्दगी को माजी से बेहतर करार दे दिया। शहर कायद की मजीद तामीर व तरक्की के अज़म का इजहार भी किया। मंजूर कॉलोनी में हनीफ शहीद फैमिली पार्क व शाहीन ग्राउंड के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में सईद गनी का कहना था कि पिछले कुछ बरसों में कराची में हमारी कारकर्दगी बेहतर हुई है। अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो जरूर मेयर हमारा बनेगा। और लोगों ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन भी बड़ी तादाद में किया है और मुख्तलिफ जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं पीपल्स पार्टी ने उसमें कामयाबी भी हासिल की है। और जो हमारी सीटें थी वो हमने पहले से ज़्यादा वोट लिए हैं। तो कोशिश हमारी है, अब ज़ाहिर है अगर कराची के लोगों ने हम पर एतमाद किया और पीपल्स पार्टी को उन्होंने अक्सरियत दी तो ज़रूर पीपल्स पार्टी का मेयर होगा। और हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें और पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में बने। सईद गनी ने MKM की जानिब से वजारतें मांगने की भी तरदीद की। MKM का असल मसला मरदमशुमारी, डोमिसाइल और शहरी मसाइल को करार दिया। ये मैं 12 कह चुका हूँ कि MKM के साथ जब हमारी बातचीत हुई तो ना उन्होंने वजारतें मांगी, ना उन्होंने हुकूमत में आने की बात की, ना उन्होंने कोई ऐसी डिमांड की जिससे हम समझते हैं कि शायद कोई इख्तलाफ पैदा। उनके जो इशूज़ थे, जो मसाइल थे, वो वही थे जो हम भी कहते रहते हैं। डोमिसाइल का मसला हमारा भी है, मरदमशुमारी का मसला हमारा भी है, शहरों में सूबा सिंध की तरक्की के डेवलपमेंट के कामों का मसला हमारा भी है। तो जो चीज़ें थी वो शायद मिलजुल के कर रहे थे, लेकिन अब ज़ाहिर है उनका अपना एक नुक्ता नज़र था, उसके हिसाब से हमने वो किया है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुआविन खुसूसी वक्कार मेहदी, जावेद नागौरी, इकबाल सांद और रहमतुल्लाह शेख समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर इकबाल वाला, लाला रहीम, फरहान गनी समेत दीगर इलाकाई कारकुनान व रहनुमा भी शरीक थे। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कनाडा के हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर ने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में रीन्यूएबल एनर्जी और शोबा सेहत के मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। असातिज़ा की तरबियत और शोबा तवानाई में मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, असातिज़ा की तरबियत करने में कनाडा की मुआवनत चाहते हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए अब कागजात नामजदगी 15 जून तक जमा कराए जा सकते हैं। मजमूई तौर पर 3 रोज़ में 1500 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने नामजदगी फॉर्म जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 4 दिन की तौसीह कर दी गई है। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 16 जून को जारी की जाएगी। 17 से 19 जून तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल की जाएगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर करने के खिलाफ 20 से 22 जून तक अपील की जा सकेगी। 27 जून को नज़रसानी शुदा फहरिस्तें अवेज़ा किए जाएंगी। 28 जून को कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 29 जून को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का इनेकाद होगा और 28 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जारी किए जाएंगे।
एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स इजाफे से 42,000 की सतह बहाल हो गई, जबकि शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 90 अरब रुपए का इजाफा हो गया। स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी देखी गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1.7% इजाफे से 42,014 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 22 अरब 13 करोड़ रुपए मालियत के 84 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 90 अरब रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,931 अरब रुपए से बढ़कर 7,021 अरब रुपए हो गई। बढ़ते दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी के बायस रुपया शदीद दबाव का शिकार हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 43 पैसे महंगा होकर 202 रुपये 35 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में भी डॉलर 4.5 रुपये महंगा होकर 203 रुपये का हो गया। माहिरीन ने रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव के शदीद मनफी असरात का इंदिया दे दिया। डॉलर के पे दर पे वार रुपया दबाव का शिकार। बढ़ते दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी ने रुपए पर दबाव बढ़ा दिया। स्टेट बैंक ने डॉलर और दीगर करेंसियों की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 43 पैसे महंगा होकर 202 रुपये 35 पैसे पर पहुंच गया है। माहिरीन ने तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंचने को रुपए पर दबाव का सबब और रुपए की कदर में उतार चढ़ाव को मईशत के लिए चैलेंज करार दिया। इस वक्त आम आदमी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो कारोबारी हैं, छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट या कारोबारी लोग नीचे रैंक के, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया अपने कारोबार चलाना। लोगों के कारोबार बंद हो जाएंगे और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो ना कोई जो टैक्स जो है ज़राअत के ऊपर लगाया है, ना ही कोई खर्चे कम किए हैं। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर और दीगर करेंसी महंगी हो गई। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपये महंगा होकर 203 रुपये पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो एक हफ्ते में 4 रुपये महंगा होकर 216 रुपये और बरतानी पाउंड 5.5 रुपये महंगा होकर 254 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इमारती धर्म 1 रुपये 10 पैसे इजाफे से 55 रुपये 30 पैसे और सऊदी रियाल 1 रुपये 60 पैसे इजाफे से 54 रुपये 10 पैसे का हो गया है। माहिरीन का कहना है कि बैरूनी कर्ज की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर नवंबर 2019 की कम तरीन सतह 9 अरब 22 करोड़ डॉलर रह गए हैं। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोना 31 डॉलर महंगा होने के बाद मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 1750 रुपये महंगा होकर 1,42,150 रुपये का हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना 31 डॉलर महंगा होकर 1871 डॉलर फी औंस पर पहुंच गया, जिसके बाद मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 1750 रुपये महंगा होकर 1,42,150 रुपये पर पहुंच गया और 10 ग्राम सोने की कीमत भी 15 रुपये इजाफे से 1,31,870 रुपये हो गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि केएमसी को माशी तौर पर मजबूत करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, जिसका फ़ायदा आइंदा मेयर को होगा और अगला मेयर भी पीपल्स पार्टी का होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने क्लिफ्टन में राशिद रब्बानी फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के लिए राशिद रब्बानी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वही पुराना कानून है, वही वसाइल हैं, बंदा तब्दील हुआ है, काम होते हुए नजर आ रहा है। अब इलेक्शन में लोगों को मौका मिल रहा है कि वो जो तब्दीली की वो उम्मीद करते हैं, जो 6-7 महीने में उनको नज़र आई है, उसका मौका उनको मिल रहा है कि जो अच्छे उम्मीदवार हैं, नजमी आलम साहब भी मौजूद हैं, करमुल्ला वकासी साहब भी हैं, जुदून साहब भी हैं, अच्छे उम्मीदवार जो आवाम से जिनका रिश्ता है, नाता है, जो आवाम में बसते हैं, जिनको पता है, शकील चौधरी साहब हैं, उनका इंतखाब करें ताकि वो उनका मुकदमा लड़ सकें। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि हम केएमसी को माशी तौर पर मजबूत करने की कोशिश में मसरूफ हैं, जिसका फायदा आइंदा मेयर को होगा और अगला मेयर भी पीपल्स पार्टी का होगा। चाहूँगा वो है कि कैसे आप अपने बल्दियाती कानून के अंदर तरामीम ला के उसको आर्टिकल 140 के एन मुताबिक कर सकते हैं। हम उनकी उस डिमांड से इत्तफाक करते हैं। हमारा भी मौक़िफ़ ये है कि एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, उसके लिए हमारी गुफ्तगू शनीद स्टार्ट हो गई है। इनमें बहुत सारी शिकायत ये आ रही है कि बाहर के लोगों को नौकरी मिल जाती है, तो उसमें वो कहते हैं डोमिसाइल के हवाले से चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम इस बात से इत्तफाक करते हैं कि हाँ, बहुत सारी जगहों पे इस तरह की खामियां आ रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन निकाला है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने आने वाले बजट में कराची की तरक्की के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए हैं। MQM की सबसे बड़ी डिमांड बल्दियाती कानून में तरमीम है। पीर को सिंध असेंबली के इजलास में पब्लिक सर्विस कमीशन का बिल पास कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने वाज़ेह किया कि MQM
से मुज़ाकरात जारी हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21। शहर हिकायत के अलबुरहान क्रिकेट ग्राउंड में LMS क्रिकेट लीग के मुकाबले जारी हैं। LMS 100 बॉल क्रिकेट लीग में बैंड ब्रदर्स ने इस्माइल इंडस्ट्री को दिलचस्प मुकाबले के बाद 8 रन से शिकस्त दी थी। अलबुरहान ग्राउंड में खेले गए 100 बॉल मैच में बैंड ब्रदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 158 रन स्कोर किए। मिनहाज शाह ने 67 और ताहा हुसैन ने 37 रन बनाए। नवीद अंजुम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में इस्माइल इंडस्ट्रीज की टीम मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों पर 150 रन बना सकी। शाहजेब अली खान ने 73 रन की शानदार इनिंग खेली, लेकिन वो अपनी टीम को शिकस्त से न बचा सके। ताहा हुसैन और विक्टर डिसोजा ने एक एक विकेट हासिल की। खिलाड़ियों ने इवेंट को शानदार करार दिया। ये बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है जी, बड़ी डिफरेंट इसमें रूल्स हैं, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट है। इसमें 20 ओवर का मैच होता है, 5 बॉल्स का 1 ओवर होता है। एक ही बॉल पे 2 लोग भी आउट हो सकते हैं, कैच आउट भी, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डिफरेंट फॉर्मेट है, 5 बॉलों का ओवर होता है इंस्टेड ऑफ 6। वाइट बॉल जो है वो पहली काउंट होती है, मतलब पहली वाइट बॉल होती है, उसके बाद 3 रन मिलते हैं दूसरी टीम को एंड द बॉल्स आर काउंटेड, तो वो डिफरेंट है। उसके अलावा आखिरी बॉल पे इनिंग्स की अगर आप छक्का मारें तो आपको 12 रन मिलते हैं, विच इज़ अ होम रन। वो एक डिफरेंट रूल है। 100 बॉल टूर्नामेंट में 6 टीमें लीग के बुनियाद पर मद्दे मुकाबिल हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। पाकिस्तान के मोहम्मद तरीन 70 साला नसीमुद्दीन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से 2 सर्टिफिकेट्स मौसूल हो गए। नसीमुद्दीन ने एक हाथ से मुट्ठी में सेब तोड़ने के मुकाबले में इंग्लैंड को 13 के मुकाबले में 18 से शिकस्त दे दी थी और फिर अपने ही रिकॉर्ड को 21 मरतबा मुट्ठी में सेब तोड़कर मजीद बेहतर किया था। इंग्लैंड के टोनी बैक्स्टर के 1 मिनट में 13 सेब तोड़ने के रिकॉर्ड को 18 सेब तोड़कर अपने नाम किया और फिर अपने ही रिकॉर्ड को 21 सेब तोड़कर मजीद बेहतर किया। सर्टिफिकेट मौसूल करने के बाद नसीमुद्दीन का कहना था कि सारी जिंदगी लोहे के साथ काम किया है, इसलिए हाथ भी लोहे का ही हो गया है। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। वो रिकॉर्ड मैंने जो किए वो उनके सर्टिफिकेट मुझे मिल गए और मेरा बहुत हौसला और बुलंद हुआ, बहुत खुशी हुई है और मैं और पाकिस्तान के लिए वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ और अगर मौका मिला इंशाल्लाह तो मैं इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक करूँगा। नसीमुद्दीन का कहना है कि अब सर्टिफिकेट भी मिल गए हैं तो खुशी दोबाला हो गई है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि नसीमुद्दीन पाकिस्तान के लिए मार्शल आर्ट में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 77 आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले मोहम्मद राशिद के वालिद हैं, जबकि इनकी पोती भी सिर्फ 7 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। महमूद रियाज, सिटी 21।